Hello and welcome to the Federal. As Haryana prepares to vote for the ongoing Lok Sabha elections, we talk to Dr. Kushal Pal, who is a political analyst and principal of the Indira Gandhi National College in Kurukshetra. Thank you for joining us, Dr. Pal. Thank you so much. Thank you for inviting me for a discussion on Haryana politics. Sir, my first Thank you. question is: in 10 days, Haryana will vote for to elect the next national government in Delhi. What are the main Ji, election issues in this election in the minds of people? actually, Haryana politics at the time of national election is dominated by the national issues because Haryana is at the threshold of the national capital, New Delhi. So primarily, the national issues dominates while there is a Lok Sabha election. However, at the time of the elections to Haryana Vidhan Sabha, the local issues, the regional issues, the state issues dominates the minds of the people. So the first thing is the question of national leadership. Secondly, this time because after two terms government of uh, Shri Narendra Modi ji at the central government, uh, people speak of the issues, people speak of the manifestos, and people speak of the Ram Mandir also. People speak of the national issue, national as well as sentimental issues also. But so far as Haryana is concerned, Haryana has been a epicenter of this Kisan movement. So that memory is also fresh in the minds of the people. And I can guess, I can gather the information from the print media that there are some opposition for the BJP leaders in the rural rural areas of Haryana. So MSP is an issue, employment is an issue. So these are major issues in the minds of the people. But Mandir is also an issue because BJP support base is basically confined to the upper caste and the urban areas. So in the upper caste and the urban areas, Mandir issue is also an important issue. The question of Ram Mandir. Haryana government is in minority after three MLAs have withdrawn. How will जी this development impact the performance of Congress and BJP in the Lok Sabha elections? देखिए ज्ञान जी एक बात तो कंफर्म है Hmm. अगर सरकार ठीक ठाक चलती रहे तो सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है सरकार Okay. कंफर्टेबली काम करती रहती है ठीक कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट कोई भी इस तरीके की घटना जिससे लगता है कि सरकार के ऊपर खतरा है सरकार अनस्टेबल हो सकती है सरकार की स्टेबिलिटी को खतरा है तो डेफिनेटली वो एक सरकार की रूटीन वर्किंग को अफेक्ट करती है सरकार के पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करती है सरकार के फ्यूचर को अफेक्ट करती है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है जो ये रिसेंट घटनाएं हैं इनसे इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा रूलिंग पार्टी के ऊपर क्योंकि सब कुछ स्मूथ चलता है तो स्मूथ रिजल्ट आएंगे और अगर स्मूथ नहीं है तो फिर देन देयर आर प्रॉब्लम Do you think it will help Congress? definitely opposition will try to gain out of it the out of the present situation अपोजिशन का तो हमेशा ही रहता है कि जो उनको परिस्थितियां हैं जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मौका मिलेगा certainly they will try to make benefit या make gain out of that. So, senior Congress leader and former Chief Minister Bhupinder Singh Hooda has said that Congress will ask for a trust vote after the national polls. Do you think there is time for a trust vote because elections are due in October, November? देखिए इसमें ना दो चीजें हैं एक तो है ट्रेडिशन दूसरा है रूल जो ट्रेडिशन ये कहती है कि 6 महीने से पहले ट्रस्ट वोट नहीं हो सकता अभी ट्रस्ट वोट पीछे मार्च में हुआ था ठीक है तो दूसरा इस तरीके का कोई रूल नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स में बहुत सारे ट्रेडिशंस काम करती हैं तो ट्रेडिशन के अनुसार तो 6 महीने से पहले ट्रस्ट वोट नहीं होगा एक ये तो है जो ट्रेडिशन है लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है चाहे तो वो तो ट्रस्ट वोट वो करवा भी सकते हैं दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अगर ट्रस्ट वोट के लिए डिमांड करती है मुझे लगता नहीं कोई एडवांटेज है इस वक्त और मुझे लगता है अगर कांग्रेस को सपोर्ट भी मिल जाती है एमएलए की तो सरकार फॉर्म करने का भी कोई एडवांटेज रहेगा क्योंकि अभी 4 महीने के बाद अभी 4 जून के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उसके बाद उसके जस्ट 4 मतलब अक्टूबर में ही रात से 1 महीना पहले अनाउंस हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो 3-4 महीने में किसी को बहुत ज्यादा काम करने का मौका भी नहीं मिलता है कोई पॉलिसी फॉर्म करने का या कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का तो उसका मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई सीरियस एडवांटेज रहेगा Sir, two issues have dominated Haryana politics in the past few years. One is जी farmer protest
and second was demand for reservations by sub communities. और Do जाट you think, कम्युनिटी। yeah, so how will these two issues impact the outcome of the election, sir? Of both the elections, Lok Sabha and Assembly? डेफिनेटली एक तो ये कि मतलब जो जाट वोटर्स हैं, जाट यहाँ पे मेजोरिटी में है, मतलब मेजोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इज द जाट्स वोटर्स इन हरियाणा, वो पीजेंट कम्युनिटी भी है। और सेकेंडली दे डिमांडेड रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट चला, तो डेफिनेटली जो पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, जो पार्टी अपोज करेगी, सपोर्ट करने वाली पार्टी को, अपोज करने वाले को, उसको उस तरीके का उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेगा। दूसरी बात, जहां तक किसान मूवमेंट की बात है, हालांकि नॉर्थ इंडिया में किसान मूवमेंट वाज कन्फाइंड टू पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न बेल्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, और कुछ हिस्सा मतलब सपोर्ट मिला राजस्थान से, लेकिन उसका एपिसेंटर हरियाणा था। जो दिल्ली बॉर्डर जो लगता है, वो सब जो लोग बैठे थे हरियाणा में बैठे हुए थे, और अगर पंजाब से भी किसान आएंगे तो हरियाणा को क्रॉस करके जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब से भी ज्यादा जो इम्पैक्ट था किसान मूवमेंट का, वो हरियाणा के ऊपर था, और ये उसी का रिजल्ट है कि अभी तरह तरह के आप विरोध उस तरीके के देखने को मिलते हैं हरियाणा के कई हिस्सों में। वो किसान मूवमेंट का इम्पैक्ट है हरियाणा की राजनीति के ऊपर, हरियाणा के समाज के। Sir, after a gap of 10 years, we see a resurgent Congress in Haryana. जी Will Congress be जी, able to maintain the momentum before the देखिए Lok ज्ञान Sabha? जी, मैं आप ज्ञान जी, इफ आई ट्रस्ट योर स्टेटमेंट कि देयर इज अ रिसर्जेंस इन हरियाणा कांग्रेस, आई ट्रस्ट योर स्टेटमेंट। दैट डिपेंड्स ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फैक्शनलिज्म हर पार्टी में रहता है, मैं आपको बताऊं, कोई भी पार्टी इम्यून नहीं है। मतलब हम कहीं कांग्रेस में है, सब सब पॉलिटिकल पार्टी, आपने पता फैक्शनलिज्म की वजह से पीछे आईएनएलडी में से ही जेजेपी बनी थी, ठीक है ना, वो तो रादर एक परिवार में से एक पार्टी का मतलब जन्म हुआ था। तो फैक्शनलिज्म रहता है, लेकिन इस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए जो मेरा मानना है, मेरा मानना ये है कि अगर जो फैक्शनलिज्म हमें दिखाई देता है, ये नहीं कि फैक्शनलिज्म पहली बार आया कांग्रेस में, फैक्शनलिज्म बहुत पुराने समय से है, इंदिरा गांधी जी के टाइम से है, तो और वो हर पॉलिटिकल पार्टी में रहता है। लेकिन इस वक्त जैसे आप मोमेंटम की बात कर रहे हैं, अगर मोमेंटम को मेंटेन करना है तो उसके लिए इनको अपनी यूनिटी भी एटलीस्ट एट द फेस ऑफ इट इनको दिखानी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इनको एक स्टेज पे आना होगा, जितने भी लीडर्स हैं, क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं जो फैक्शंस कांग्रेस में है, वो सबके अपने अपने रीजन्स में पकड़ है। जैसे हरियाणा में एक देशवाड़ी जाट बेल्ट है, एक बागड़ी जाट बेल्ट है, एक नॉर्थ हरियाणा है, एक साउथ हरियाणा है जिसमें अहीर बेल्ट है, ब्रिज बेल्ट है, तो ब्रज बेल्ट है। तो इस तरीके से हर बेल्ट में एक, जैसे अभी वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस में वापस आए, तो उनके एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में पकड़ है। इसी तरीके से दूसरे लीडर्स की पकड़ है, अपनी अपनी जगह पे लीडर्स की अपने अपने एरियाज में एक पकड़ रहती है। तो अगर वो इकट्ठे होंगे तो डेफिनेटली इस मोमेंटम को और मोमेंटम मिले। Sir, do you think that Haryana will witness नोट early assembly elections? करता, मतलब मैंने आपका, मतलब मुझे इसमें कोई संभावना नजर नहीं आती है, Early elections नहीं देख रहे मुझे हैं। इसमें कोई संभावना नजर नहीं आती है अर्ली इलेक्शंस की। हाँ, मुझे इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती है, मतलब इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी अगर हम ये कहते हैं कांग्रेस जीती है बीजेपी जीती है, दोनों ही सिचुएशन मुझे इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती है। मेरे मुताबिक अर्ली इलेक्शन ही होंगे, मेरे मुताबिक इलेक्शन बिल्कुल एंड टाइम पे, मेरा ये मानना है। Sir, और मुझे लगता नहीं कि अर्ली इलेक्शन करवाने का, जो भी पार्टी लूजर है, जो भी पार्टी लूज या गेन करेगी, उसको अर्ली इलेक्शन करवाने से कोई एडवांटेज रहेगा। आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देख लें, पिछली बार भी, हालांकि वो एग्जैक्ट 4 महीने बाद इलेक्शन हुआ था, लेकिन रिजल्ट वो लोकसभा के अनुसार नहीं थे, वो लोकसभा के अनुसार नहीं थे, वो उससे अलग रिजल्ट थे। तो रिजल्ट अगर कोई भी तो ज्यादा उत्साहित होकर उसके बाद तुरंत चुनाव करवाता है, तो जरूरी नहीं है कि उस तरीके के साथ में नतीजे आएंगे। जैसे आपने दिल्ली का केस देखा होगा, दिल्ली में साथ की साथ बीजेपी को एमपी की सीट गई थी और बाद में सारी की सारी आम आदमी पार्टी को चलेगी विधानसभा की सीटें। ऐसे हम जब एक साथ चुनाव कराते हैं, वो भी अलग अलग वोटर्स वोट करता है। उड़ीसा का केस आपके सामने, तो मुझे लगता नहीं इसकी कोई जरूरत है या कोई कोई इस तरीके की घटना होगी इसके बाद।